So at that time, I got interacted with Mr. Praveen, and now I came to know about this course. So I happily joined the, and I'm very excited to learn something about the data. Yeah, Okay, thanks, Sarendra. Now I thank will you. come to Sirja. Yeah, hello, sir. Just a Yes, second. Sirja, can you turn on your camera? Yes, sure. Yeah. Just a second. Yeah. Hi. Hi, Tell me. I'm Shrija. I'm from Indore, Hmm. and I've Mhm. done my MCA. And post that, मैं मुंबई में रही हूँ and I was a teacher. Okay. मैंने 7 साल जॉब किया है in computer science. Mm. And then Good. I have a baby. उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा था. देन मेरे हस्बैंड ने कंपनी स्टार्ट करी थी. इट्स ऑटेक सोल्यूशन एलएलपी. Hmm. एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ द कंपनी. सो अभी मुझे बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें कुछ नॉलेज में है. सो इसलिए आई हैव जॉइन दिस कोर्स. Okay. Nice, nice. Now I will come to Amri. Amri, Amri, am I audible to you? I think that the mic is not working of the Amri. Mohit mic is also not working. Mohit, I having some problem with mic. Can you write on the chat box? Thanks, Sirja. I just थैंक यू सर. या. okay, okay. Uh, Amri and Mohit, I am not getting the mic is not showing you on your. Okay, so let me just see the chat if they are writing something on the chat. Mm. Yes, Mohit, can you write on the chat because they don't have the mic, it is not showing there. So I think confirm your speaking language sound like might be cancelled. Okay, so I think that yeah, there's some issue with the mic and this all, so no problem. So uh, I have already sent you the agenda of today's session. Uh, Yes, sir. Before that, I would like to uh, just a moment. These participants. Okay. I will just tell you about this course, what we are going to cover 2.5 month next. So here we are taking many tools, not only one tool. In the last Mm-hmm. batch where the Afsan has attended, we Yes, have sir. used only R programming. Okay. Mm-hmm. Here in this 2 month program, or it may be 15 days more, 2.5 month, Mm. it depends on your pace of learning. Yes, sir. So we will cover 5 tools. First tool would be the Excel. We will start the Excel with basics, advanced Excel, and the modern Excel. Okay. Mm-hmm. Then we will learn another tool which is called the SQL. Okay, query language. And then we will learn Power BI for dashboard making. Okay. And after that, we will cover R programming and Python programming. So we will cover this all 5 tools in the perspective of data analytics. So हम देखेंगे कि डेटा एनालिटिक्स में कौन कौन से एनालिसिस हम लोग कवर करेंगे. अभी मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और हम कौन कौन से एनालिसिस के अंदर कवर करने जा रहे हैं. ठीक है. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट विथ यू. आर यू आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली ना? ओके. Yes, sir. Okay, thanks. So let me just share my screen with you all, and here is that PPT. Okay. So we have this training
for data analytics and machine learning. Machine learning is already the part of data analytics. People say separately this sometimes. So let me just explain few things to you first, then we start the session properly. There are various tools which we use for doing the analysis. So Excel is there, Python is there, SAS is there, Tableau, SPSS, MySQL, Hadoop, Spark, Power BI, and these all are programming. These are all tools. And through these tools, we perform the task of data analytics, data science, deep learning, machine learning, artificial intelligence, and the core of these all things is the statistics. So स्टैटिस्टिक्स के बगैर डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लोग क्या है, डेटा एनालिटिक्स तो सिखा रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, दूसरी जगह कोडिंग सिखाते हैं, नेविगेशन बता देते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स के बारे में कोर नॉलेज नहीं दिया जाता है। जब स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं होगा, डेटा एनालिटिक्स का मेन पर्पस होता है कि आपको स्टोरी टेलिंग करना है डेटा से, ठीक है। वो स्टोरी टेलिंग में भी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, में भी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, फिगर्स और व्हाट एवर, है ना। तो वो स्टोरी टेलिंग प्रॉपर तब होएगी जब आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज होगा, स्टैटिस्टिक्स का अच्छे से नॉलेज होगा, आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज एक स्टोरी में मोस्टली कहता हूँ डेटा एनालिस्ट के बारे में कि अभी भी जो 50-60% डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं, उनको भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं आता है। ओके, कोई वेरिएबल है, मान लीजिए सेल्स का वेरिएबल है, हमारे सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है मोस्टली ऑल डोमेन ऑफ इंडस्ट्री, और सेल्स के वेरिएबल में डेविएशन बहुत कम है। मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं सेल्स की, मीन के आसपास ही हैं, मीन के बहुत करीब हैं, बहुत बड़ा डेविएशन या वेरिएंस बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें। इन स्पाइट ऑफ दैट लोग उस सेल्स के वेरिएबल को लेके दूसरे वेरिएबल के साथ उसका एनालिसिस शो करते हैं, ठीक है ना। तो वो जब सेल्स स्टैटिक है, उसमें वेरिएंस ही नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उस वेरिएबल को हमें लेना ही नहीं है हमारे एनालिसिस में, उसको वहीं ड्रॉप करना है। तो इस तरह से लोग एनालिसिस कर देते हैं, और वो जो इंसाइट्स हैं डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल नहीं होती हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज मैं आपको भी वो स्टोरी बताता हूँ कि जो मोस्टली डेटा एनालिस्ट हैं, इसमें सिर्फ 50-60% का हाल क्या है, पहले हम उसको समझें इस स्टोरी के द्वारा। एक गांव में गूंगे लड़के को, जस्ट आई जस्ट स्टॉप दिस एंड आई जस्ट एक्सप्लेन यू द थिंग। एक गांव में गूंगे लड़के को पड़ोस की गांव की बेरी लड़की से प्रेम हो जाता है, इश्क हो जाता है। तो अब वो मिलने लगते हैं रोज। अब गांव में कोई मॉल तो होता नहीं है, कोई ऐसी साइट भी नहीं होती जहाँ मिले, तो मंदिर के पास या खेत खलियान के पास दे मीट। एक दिन लड़की का चाचा, जो कि अंधा है, उनको देख लेता है, और वो दौड़ता हुआ लड़की के बाप के पास जाता है, और बाप को बताता है कि आपकी लड़की फलाने फलाने लड़के से मिलती है। बाप, जो कि व्हील चेयर पे बैठा है, एक टांग नहीं है उसकी, उसको बड़ा गुस्सा आता है, और वो दौड़ता हुआ कमरे के अंदर जाता है, वहां से तलवार निकालता है, वापस आता है, कार का गेट खोलता है, मोटरसाइकिल पे बैठता है, और खेत की तरफ जाता है। वहां घोड़े से उतरता है, अपनी राइफल तानता है लड़के की तरफ, ट्रिगर दबाता है, उसमें से तीर निकलता है और लड़के पे जाके ग्रेनाइट फट जाता है। तो एनालिसिस में स्टोरी टेलिंग ऐसी हो रही है मोस्टली कई जगह। मैं कुछ कंपनियों में कंसल्टेंट भी हूँ, हाँ, और कुछ कंपनी मुझे एडॉक बेसिस पे कंसल्टेंट
हायर करती हैं, कहीं वो लोग स्टक हो जाते हैं। तो वहां मैं देखता हूँ इसी तरह का एनालिसिस हो रहा है मोस्टली। दे डोंट हैव द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नॉलेज, उनके पास नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का नहीं मालूम कि भाई किस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमें कैसे क्या, किस वेरिएबल को रखना है, किसको हटाना है, किसका इंटरप्रिटेशन क्या होना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं वापस बिल्कुल। आता हूँ स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग पे, और अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज का जो हमारा एजेंडा है, यदि मैं एजेंडा आपके साथ शेयर करूं, तो ये एजेंडा हम लोगों का है, द लाइव सेशन 1.5 आवर्स का है, डेली रहेगा 6 days a week। और आज का एजेंडा फोकस कर रहा है डेटा साइंस लैंडस्केप को हम समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटा के क्लासिफिकेशन क्या है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस क्या है। हम इन चीज़ों को कवर अप करेंगे, और ये मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। और डेली आपको सेशन के ऐसे एजेंडे व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर पहले कर दिए जाएंगे। आज तो सेम ठीक डे है। किया है, कोशिश करूंगा 1-2 दिन में ये, 1 day before you will get the agenda of next day, and the हम्म। content related to that topic you will also get in the drive prior of the session। हम्म। तो जिससे आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, क्योंकि ये जी सर। 2 महीने में जो कोर्स, 9 महीने और 6 महीने का कोर्स है, वो हम 2 महीने में कवर करने जा रहे हैं। तो आप समझ बिल्कुल। लीजिए कि हमें मेहनत कितनी करना है, हमें किस बिल्कुल सर। पेस से इस कोर्स में हमें चलना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा, और बीच बीच में हम रेगुलर असाइनमेंट भी इस बार इन्वॉल्व कर रहे हैं कि यस आप, सर, ये बहुत जरूरी है। है ना। ये बहुत क्योंकि जरूरी पिछले है, बेच क्योंकि में एंड क्या में था, चीजें कवर नहीं होती, मुश्किल हो खबर नहीं, जाता है बंदे। तो रेगुलर असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे, आपको भी मेहनत करना है। और 2 महीने के 2.5 महीने लग जाएं, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के लिए मैंने पिछला पेज भी आपने देखा था अफसान जी, अपन ने जो जी सर, कमिट किया बिल्कुल। था, लंबा गया और ज़्यादा टाइम लगा, पर उसके लिए मैं इतना चिंता नहीं करता हूँ। बट अपन रेगुलर हम्म। बैच को रखें और आप लोग डेली क्लासेस अटेंड करें। जो भी लेकिन प्रॉब्लम सर वो आती है, है ना कि चीजें क्लियर हुई हैं, मैंने हाँ पूछा है लोगों से जिन्होंने 4-4 साल भी डिग्री में लिए हैं ना, उन्होंने भी वो सारी चीजें नहीं सीखी। हाँ, तो ये मेरे वही, साथ एवरग्रेन है। यानी इतना आप अच्छे से चीजें कवर कराते हैं, ये तो हम तक है ना, हम उसको कितना टाइम दे रहे हैं। हाँ वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। और हम्म। रेगुलर रहें क्लास में, बिल्कुल। अटेंटिव रहें। हम्म। और जो ठीक है, सब वर्किंग, मोस्टली द पीपल्स आर वर्किंग पीपल। और देखिए, बिल्कुल। टाइम तो किसी के पास नहीं होता ना, मेरे पास है, फिर भी मैं ये बैचेस लेता हूँ। और इसके अलावा भी हम्म। हर बैच के लिए मैं, अब जो है, पिछले टाइम तो मैं रेंडम, मेरा ऐसा है कि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 30+ years इन दिस फील्ड। यस। तो मैं तो रेंडम हम्म। क्लास भी ले सकता हूँ, पर अब मैं इस कोर्स को बहुत कम्पैक्ट किया हूँ। बहुत सारी हम्म। चीज़ें बहुत कम ड्यूरेशन में कवर करना है, तो मुझे भी इस कोर्स के जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो भी इस हिसाब से बना रहा हूँ मैं। और मुझे भी डेली बिल्कुल। इसमें 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मैं अपने भी दूंगा, लग रहे हैं। कंटेंट डेवलपमेंट, हम्म। है ना, जिससे कि बिल्कुल। एक कंटेंट आपको प्रॉपर मिले, असाइनमेंट हम्म। प्रॉपर मिले, और जहाँ बिल्कुल। गलती हुई उसको हम समझ पाए। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये एजेंडा है हमारा। आज हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस। हम ये 3 टॉपिक आज के डेट में कवर करेंगे। सो लेट मी जस्ट शेयर द पीपीटी विथ यू ऑल। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द डेटा साइंस प्रोसेस क्या है, पहले हम इसको समझें। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स इज द पार्ट ऑफ, सब डोमेन ऑफ डेटा साइंस का एक सब डोमेन है। तो ये जो यात्रा चालू होती है डेटा की, वो होती है डेटा जनरेशन से। डेटा जनरेट होता है, या डेटा हम कलेक्ट करते हैं, है ना। अब हम्म। देखिए, या तो कोई सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो लोग सॉफ्टवेयर में, उनके हम्म। पास जो भी पोर्टल होता है उसमें आपका नाम, ये सब, तो वो डेटा जनरेट हुआ कहीं ना कहीं। आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वहां भी आपका डेटा आप फिट करते हैं ना, या मोबाइल नंबर या जो भी है, तो वो डेटा जनरेट हो रहा है। और डेटा कलेक्ट भी करते हैं हम लोग कई तरीके से, जैसे कि गूगल फॉर्म के थ्रू या क्वेश्चनियर के थ्रू। तो वो भी डेटा कलेक्शन का एक पार्ट है। और कुछ सेंसर्स के द्वारा भी डेटा ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस में जनरेट होता है। तो
पहला जो वर्क है डेटा कलेक्शन, उसके बाद आता है उसकी क्लीनिंग, क्योंकि डेटा जो होता है उसमें हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, डेटा रेडी फॉर्म में नहीं होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, डिफिशियंसी होती हैं, उसकी हमें क्लीनिंग करना होती है। तो दो प्रकार की क्लीनिंग होती है, एक मैक्रो क्लीनिंग, एक माइक्रो क्लीनिंग। तो डेटा इंजीनियर्स का जो काम होता है, उनका काम होता है मैक्रो क्लीनिंग करना। जैसे मान लीजिए अमेजोन का कोई डेटा आ रहा है हमारे पास। अमेजोन में तो हर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मल्टीपल सेल्स होती हैं, है ना, हर सेकंड मल्टीपल सेल्स हो रही हैं वर्ल्ड वाइड। अब यदि वो हमें वैसा ही रॉ डेटा डिलीवर कर दें तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि उस डेटा को वो कुछ ट्रांसफॉर्म करें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करें, हमें डेली बेसिस पे सेल दें, है ना। हमें फ्रिक्वेंसी के हिसाब से सेल नहीं चाहिए, हमें इवेंट वाइज सेल नहीं चाहिए, हमें डेली वेजेस पे चाहिए। तो वो उसको ग्रुप बाय करके हमें डेली वेजेस की सेल दे देंगे। तो इस प्रकार से कुछ काम जो होते हैं वो हमें इनके थ्रू, क्या बोलते हैं, ईटीएल प्रोसेस के थ्रू। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। वो एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटाबेस से डेटा को, क्योंकि देखिए क्या होता है, डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है, या तो वो क्लाउड में स्टोर है, या किसी डेटाबेस में स्टोर है, या वो फ्लैट फाइल्स में। फ्लैट फाइल्स यानी आपका CSV फाइल, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है, PDF भी आज फ्लैट में कहलाती, कन्वर्ट हो जाती है बाद में। तो उस फॉर्मेट में है, या वर्ड में है, किसी भी फ्लैट फाइल के फॉर्मेट में है, और वहां से हमें डेटा लेना है। तो वो डेटा के डेटाबेसेस भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। ये सब का लुक आफ्टर, इन सब चीजों को देखते हैं डेटा इंजीनियर्स, या डेटा आर्किटेक्चर उस डेटाबेसेस को फ्रेम करते हैं, उसको बनाते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप है, तो वो किस तरह का उसको जैसे जैसे देखिएगा कि मैं बात करूं आपको, पोटैटो को यदि हम कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे क्या, आप बताइए, पोटैटो कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं? नो। नहीं। नहीं। नहीं रख नहीं। सकते। तो उसके लिए स्टोरेज अलग चाहिए ना, ड्राई स्टोरेज चाहिए उसके लिए। हाँ, ग्रीन हम्म। बिल्कुल वेजिटेबल्स के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए, है ना। हम्म। तो बिल्कुल। हर तरह के आप देखेंगे कमोडिटी के लिए अलग अलग तरह के स्टोरेज होते हैं, वेयर हाउस होते हैं। ऐसे ही डेटाबेस भी जो होता है, हर तरह के डेटा के लिए डिफरेंट डेटाबेस होता है। तो हमें उधर बोधर नहीं होना है कि क्या डेटाबेस है क्या है ना। हमें इसमें क्या बिल्कुल। सीखना है, आजकल जो डिमांड आ रही है कि भाई आपको डेटा एनालिसिस करते आता है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको डेटा को कनेक्ट करते भी आना चाहिए डेटाबेस से। हम्म। आपका जो टूल पे आप एनालिसिस कर रहे हो उसको डेटाबेस से कनेक्ट करते आना चाहिए, कि आप खुद वो डेटा वहां से ले आओ डेटा वेयर हम्म। हाउस में, और वहां से फिर आप, या डेटा वेयर हाउस में आपको दे दे डेटा इंजीनियर, वहां से आप डेटा को हम्म। कनेक्ट करके एनालिसिस कर पाए। क्योंकि आपको डेटा रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में हमेशा CSV फाइल या एक्सेल फाइल में नहीं मिलने वाला है। ठीक है हम्म। ना, इट मे बी ऑन द क्लाउड, इट मे बी ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी हो सकता है, हडूप के, या और भी किसी फॉर्मेट में हो सकता है। तो उसको हमें कनेक्ट करते आना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल। तो ये हम्म। जो प्राइमरी वर्क है कि डेटा को डेटाबेस से, क्लाउड से, फ्लैट फाइल से लेकर के डेटा वेयर हाउस में लाना, ये काम है डेटा हम्म। इंजीनियर्स का। डेटा वेयर हाउस से फिर हम डेटा को फेच करेंगे SQL क्वेरीज के थ्रू, और उससे फिर हम एनालिसिस करेंगे। गॉट इट। ये हम्म। काम होता है डेटा यस। एनालिस्ट का। डेटा वेयरहाउस से डेटा उठाना है, या CSV फाइल है या एक्सेल फाइल है, यहाँ से डेटा उठा के हमें एनालिसिस करना है, या फ्लैट फाइल्स, जो CSV फ्लैट फाइल से होगी। हम्म। डेटा एनालिस्ट का दूसरा वर्क होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। क्लीनिंग तो करेगा ही, वो माइक्रो क्लीनिंग करेगा, डेटा की मिसिंग वैल्यू है उनको, उनका ट्रीटमेंट देना है, मिसिंग वैल्यू वाले ऑब्जर्वेशंस को हटाना है या उनको रखना है, यहाँ वहाँ मिसिंग हम्म। वैल्यू की जगह कोई और वैल्यू इंप्यूट करना है ना। एक तो ये चीज होती है। दूसरा माइक्रो क्लीनिंग में होता है आउटलायर्स डिटेक्शन करना, कि कुछ डेटा में हम्म। आउटलायर हो सकते हैं, है ना, जो वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है बाकी डेटा पॉइंट से, उसको हम आउटलायर्स बोलते हैं। तो वो आउटलायर्स को डिटेक्ट करना और उसको भी ट्रीटमेंट देना, है ना, उसको एडजस्ट करना।
तो ये सब काम डेटा बिल्कुल। क्लीनिंग के पार्ट में आते हैं, और ये सब डेटा एनालिस्ट का काम होता है। माइक्रो क्लीनिंग होती है, ये करी जाती है। इसके बाद आता है हम्म। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जब डेटा है तो डेटा तो आपको एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा, तभी तो एनालिसिस होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको है। हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यहाँ पर हमारे डिफरेंट तरह के एनालिसिस होते हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में देखेंगे उसको, ठीक है। ठीक एक्सप्लोरेटरी है। डेटा एनालिसिस के बाद जब हमने एक्सप्लोर कर लिया डेटा को, फिर हम मॉडल बिल्डिंग करते हैं, उसकी मॉडल बनाते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल। यहाँ पे मशीन लर्निंग चालू हो जाता है मॉडल बिल्डिंग से। बहुत से मॉडल्स होते हैं, बहुत से एल्गोरिथम होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हुआ, डिसीजन ट्री हुआ, रैंडम फॉरेस्ट हुआ, सपोर्ट वेक्टर मशीन हुआ, हम्म। नाइप बेस हुआ, फिर आपका टाइम सीरीज एनालिसिस हुआ, फिर आपका सेगमेंटेशन इन क्लस्टरिंग हुआ। तो ये सब तरह के अलग अलग हम्म। एल्गोरिथम है, अलग अलग जगह पे उसका उपयोग होता है, वो भी हम देखेंगे। ये भी हमारे कोर्स के अंदर है, यहाँ तक है मॉडल बिल्डिंग। नेक्स्ट आता सही। है मॉडल डिप्लॉयमेंट, जहाँ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये लोग आपने जो मॉडल बना के दिया उसको डिप्लॉय करते हैं, या तो ऑनलाइन डिप्लॉय करेंगे या किसी सॉफ्टवेयर में, या जैसा भी मोबाइल एप्लीकेशन में जिसमें भी इसको डिप्लॉय करना है वो लोग इसको करते हैं। वो उनका काम रहता है, दे सही। आर बेसिकली द सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ये काम करते हैं। हम्म। तो वहाँ भी हमें नहीं जाना है, हमें मॉडर्न बिल्डिंग पे खत्म करना है। तो आप देखिए कि डेटा एनालिस्ट का जो रोल है वो क्लीनिंग से चाकू चालू होकर के मॉडल बिल्डिंग पे जाके एंड होता है, ठीक है। बिल्कुल। और ये ओवरऑल जो प्रोसेस है वो डेटा साइंटिस्ट की प्रोसेस है ना। ये यूनिकॉर्न डेटा साइंटिस्ट वो होते हैं कि जो शुरू से लेकर के डेटा आर्किटेक्चर से लेकर के मॉडल डिप्लॉयमेंट तक का नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो ये हम्म। चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि हम डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, यदि हम बिजनेस पर्सपेक्टिव में एनालिसिस कर रहे हैं, खाली बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो वो बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब है कि आप हेल्थ केयर डोमेन पे भी काम कर रहे हैं, आप किसी ऑपरेशन डोमेन पे भी काम कर रहे हैं, है ना। तो वो डेटा हर तरह के डेटा पे काम करता है। पर बिजनेस एनालिटिक्स में खाली आप बिजनेस डोमेन पे, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट पे कोई काम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सो दैट इज द बिजनेस एनालिटिक्स। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब यहाँ भी मैंने वही बताया कि बिजनेस एनालिटिक्स फ्लो होता क्या है, या डेटा एनालिटिक्स फ्लो होता क्या है। तो भाई डेटा सोर्सेस हैं, डेटा सोर्सेस के बिल्कुल। ETL के थ्रू हम डेटा वेयर हाउस में लेके आए, डेटा वेयर हाउस से SQL के थ्रू हमने हमारे जो भी पाइथन है, आर है, आप इवन एक्सेल पे भी कनेक्ट होता है ना। और हम्म। साथ में आपका पावर BI है, टैबलू है, जिस पे भी आप उसको कनेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, और उसको रिपोर्ट में या डैशबोर्ड में जिस भी फॉर्म में आप देना है आप दे सकते हैं, है ना। तो इसमें 4 स्टेज हमारी हो जाती हैं। डेटा सोर्सेज है, डेटा फ्लो है, डेटा मॉडलिंग है, और फिर यूजर्स के पास फाइनल मॉडल होके पहुंच जाता है। ये हमारा मेन इसके अंदर डेटा एनालिटिक्स का ओवरऑल फ्लो होता है। कोई किसी को कोई प्रश्न है इसमें? हाँ जी, धनंजय जी। अ, एक क्वेश्चन था मेरा छोटा सा, मतलब हाँ हाँ, पूछिए। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ मतलब हाँ। जैसे कि अभी अपन देखते हैं कि जैसे शेयर मार्केट का जो हम्म। डेटा रहता है, हाँ तो हाँ। क्या मतलब उसका भी एनालिसिस हो सकता है? हाँ, क्या उसका उसका भी भी होता है। प्रोडक्शन हो सकता है? हम्म। वो अच्छा। टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू हम लोग करते हैं, उसके अंदर फोरकास्टिंग उसकी। तो और एक उसमें छोटा सा। और भी एल्गोरिथम होती हैं, उसको साथ मिलके हम जब शेयर मार्केट में आप देखें रेल बनती है ना, हम्म। रेल, आप शायद शेयर मार्केट का काम करते होंगे तो जानते होंगे। तो हम्म। रेल बनती है, रेल के लिए हमारे पास मान लीजिए वो रेल चल रही है, रेल को कई लोग पकड़ पाते हैं जब उठता है मार्केट, उसको रेल बनना बोलते हैं, रेट्स उठते हम्म। हैं किसी चीज के हम्म। अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लोग हम्म। उसको 60% रेल निकल जाती है उसके बाद पकड़ पाते हैं, है ना, कि हाँ ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, और तब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और उनको उसमें से निकलना भी है, कब वो डाउनफॉल में चला जाएगा नहीं पता, है ना। तो वो उनके पास बहुत कम मार्जिन होता है, 60% से 80% पे ही वो लोग खेल कर पाते हैं। हम्म। गॉट इट। तो यदि इस रेल को आपने मॉडल बना लिया, उस रेल को आप 30% पे कवर कर लो, तो पकड़ लो, तो आपका कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ा ना, रेट उतने बढ़े ही नहीं। ओके। रेट उतने बढ़े ही नहीं, आप 60% पे कवर कर रहे तो रेट ऑलरेडी हाई हो चुके थे,
यदि हम्म। आपने ऐसा मॉडल बना लिया कि जो आपको ये बता दे कि नहीं यार 30% पे ही आपको पता चल जाए कि ये रेल बन गई है, ये 30% पे ही आपने पकड़ लिया कि नहीं ये रेल, उसको रेल बनना बोलते हैं जनरली उनके टेक्निकल लैंग्वेज में। यदि आप कोई रेल 30% पे कैच कर पाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। आप 30% पे कैच करेंगे बहुत कम रेट में, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू दे रहा हूँ, और वो 10 रुपए का शेयर 30% पे आपने परचेस किया, है ना, और उसको 80% पे वो शेयर की कीमत हो गई 200 रुपीज, ओके। ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन मिला। यदि वही शेयर आप 60% रेल पे खरीदते तो वहां वो 150 रुपए का हो चुका था। करेक्ट। तो आप 150 से आपको 200 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे आपको 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 200 रुपये मिल रहा है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है यदि आप यस रेल जल्दी यस यस। पकड़ लेते हैं। हम्म, तो यस इस यस। तरह की भी एल्गो बनाई जाती हैं, और इसको जी जी। टाइम टाइम पे रिट्रेंड करते रहना पड़ता है, जी क्योंकि मार्केट बहुत से एक्सटेनियस फैक्टर होते हैं जो जी। वर्क करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। बड़े बड़े लॉबीज होती हैं जो जी जी। मार्केट का रूप बदल बदल देती हैं, है जी ना। तो जी। वही सब, उन्हीं के कारण ये रेल वगैरह सब क्रिएट होती हैं, वही लोग सब करते हैं खेल। जी ना वो तो मिलियंस में, बिलियंस में, मिलियंस में इन्वेस्ट करते हैं एक साथ, जी। उनका काम ही रोज का यही। जी व्हाट इट। जी। यस तो सर। इससे बना के और अच्छा पैसा अचीव किया जा सकता है, पर सही एल्गोरिथम फिट हो जाए और उसको टाइम टू टाइम रीट्रेन करते रहें, है ओके। ना, रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। और इसका तो डेटा हमको अवेलेबल हो जाता है? हाँ, अवेलेबल है पूरा। आप तो एक्सेल पे मैं आपको डेटा दिखा दूंगा निकाल के, रियल टाइम। ओके। ओ। एक्सेल, मॉडर्न एक्सेल में जी आप जी जी। किसी भी शेयर का बोलो, मैं आपको शेयर का रेट 56 डेज में, 56 डेज में कितना अप रहा, कितना डाउन रहा, हाई कितना गया, लो कितना गया, सब कुछ पूरा एनालिसिस एक्सेल पे भी हो जाता जी जी जी। हम्म, है। मतलब मॉडर्न एक्सेल इतना एडवांस हो गया आज की डेट में, है जी ना। जी। तो वो हम इसलिए मैंने एक्सेल और सब चीजें इन्वॉल्व करी कि हम टूल सेंट्रिक ना हो, जी मेन जी। चीज। बिल्कुल, यानी कि एक ही टूल को लेके बैठे रहे हैं कि बस इसके हाँ, अलावा तो हम काम ही नहीं करेंगे। काम ही नहीं करेंगे, है ना। जब हम्म, हमें मैनुअल गियर वाली गाड़ी आती है तो हम ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, ये मेरा बिल्कुल कहने ऐसे का ही है। मतलब है ना। तो ये सही है। है। अब मैं रोल्स के बारे में मैंने ये शेयर कर दिया है मेरे उसके अंदर ड्राइव में, तो ये आप वहां से स्टडी कर हम्म, लेना, है ना। इसको मैं पढ़ के ठीक एक्सप्लेन है। करूंगा, कोई मतलब नहीं है ना। डेटा हम्म, साइंस डोमेन में क्या क्या रोल होते हैं, क्या हायरार्की होती है। अब हम बात हम्म, करते हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स जो है वो कोर है डेटा एनालिटिक्स की। डेटा एनालिटिक्स में 80% स्टेटिस्टिक्स होता है, 20% मैथमेटिक्स होता है, यदि अपन इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। हम्म, डेटा साइंस में जहाँ पे डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क की बात आ जाती है, या एनएलपी की बात आ जाती है, वहाँ पे 80% मैथमेटिक्स होता है, 20% स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है। तो हमारे डेटा एनालिटिक्स में जो चीजें हैं वो 80% हमारे को स्टैटिस्टिक्स पे ही बेस्ड है, 20% मैथमेटिक्स है, तो बहुत जनरल मैथमेटिक्स है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल। है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस तरह का ही है, बहुत हाई लेवल पे नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझें कि स्टैटिस्टिक्स है क्या ओवरऑल। आप लोग भी कई वर्षों से स्टैटिस्टिक्स पढ़ते आ रहे हो, बट फिर भी हम एक बार इसको रिकेप करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की यदि हम डेफिनेशन देखें जेनरिक, सो इट इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, कंप्यूटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स इनसाइट। ये एक साइंस है, विज्ञान है, और ये एक आर्ट है, कला भी है, दोनों चीजें हैं। डेटा को कलेक्ट करना, उसको क्लासिफाई हम्म, करना, इसको कंप्यूट करना, कंप्यूट करके हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, और भी जितनी भी स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो सब हम फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस इज द थॉट प्रोसेस, है ना, कि हम एनालाइज करते हैं, ये वैल्यू आए तो इसका ये मीनिंग निकलेगा, ये है। और फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, है ना, वर्ड में या जिस भी फॉर्म में आप करते हैं। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स इनसाइट, जो भी डेटा का प्रेजेंटेशन है, उसके इनसाइट्स का प्रेजेंटेशन है, हम उसको मतलब डेटा और उसके इनसाइट्स को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का ओवरऑल रोल है। अब स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। तो पहले हम देखें कि साइंस क्यों है और आर्ट क्यों है। दोनों चीजें हैं तो भाई क्यों है, या तो ये साइंस होना चाहिए या ये आर्ट होना चाहिए, पर ये दोनों हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है,
हम इस चीज को समझते हैं सबसे पहले। यहाँ मैंने एक छोटा सा डेटा सेट दिया है। मैं चाहूंगा कि आप इसका मुझे मीन निकाल के बताएं, एवरेज क्या होगा इसका। आप लोग कैलकुलेट करें। छोटा सा डेटा सेट है, 5 संख्या हैं। इजीली एवरेज निकालना सभी को आता है, आई होप सो। हम्म। क्या एवरेज आ रहा है इसका आप बताइए, चैट बॉक्स में लिखें। यदि आ, आपको उसमें दिक्कत आ रहा हो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, है ना। 8, धनंजय 8, ओके। लवन्या 8, ओके। टन नहीं होगा सर? है, देखिए आप सर रिकैलकुलेट करें। 8 सेट। 8, ओके। श्रिया ने 8 बोला ना, और किसने बोला? बिल्कुल सर, ठीक है। है ना, 8 ही है। 8 है, 8 ही सभी है। लोग बोल रहे हैं 8 है। जी ओके, जी। हम्म। जी जी। देखिए सबका मीन सेम आया। इसका मतलब ये हम्म। तो नहीं है मैं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूं तो मेरा मीन आपके मीन से बेटर होगा। इज इट पॉसिबल? नो। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज साइंस। साइंस हमेशा, साइंस में कुछ मेथड्स होते हैं, है ना। एक यूनिफॉर्म रिजल्ट देती है साइंस। जैसे कि हम देखें केमिस्ट्री में, एसिड और बेस को जब भी हम मिक्सचर करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? वाटर एंड सॉल्ट। एसिड यस। और बेस को यदि मिक्स करते हैं तो वाटर और सॉल्ट ही मिलने वाला है ना, चाहे वो सॉल्ट मैं है, करूं यस। मिक्स या कोई और करे, है ना। यस। चाहे बहुत बड़ा एज अ बाई साइंटिस्ट भी, प्रोडक्ट हमारे पास हाँ, यही चीजें आती हैं। एक बहुत एक्सपीरियंस साइंटिस्ट भी उसको, वेटरन साइंटिस्ट भी उसको मिक्स करेगा तो उसको भी वाटर एंड सॉल्ट मिलने वाला है। और एक हम्म। फ्रेशर भी उसको मिक्स करेगा तो उसको भी वाटर एंड सॉल्ट ही मिलने वाला है। ऐसा ओके नहीं है सर। कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन को एल्कोहल मिलने लगे उसमें से, है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो साइंस हमेशा हमें यूनिक यूनिफॉर्म रिजल्ट देती है। इसलिए ये साइंस है, क्योंकि इसमें मेथड्स हैं हर चीज के। इसलिए हम इसको स्टैटिस्टिक्स को साइंस बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कि ये आर्ट क्यों है। ठीक है, साइंस तो समझ में आ गया क्योंकि इसमें फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले हमेशा सेम रिजल्ट देंगे यदि हम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब हम्म। हम बात करते हैं, दिस इज अ गिलास ऑफ वाटर, नॉट अ गिलास ऑफ वाइन, है ना। इट इज अ गिलास ऑफ ठीक वाटर। है, तो ग्लास हाउ ऑफ डू यू वाटर। इंटरप्रेट दिस? बताइए धनंजय जी, क्या बोलेंगे इसको, कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस पानी के गिलास को? ग्लास में पानी है सर। पानी है, कितना है? कुछ तो करेंगे ना, पानी तो है, हाफ ठीक है। एम्प्टी और हाफ फिल्ड, समवन हाफ कैन। एम्प्टी हाफ फील्ड, अच्छा। हाँ। बाकी लोग बताएं। हाँ, बाकी क्या सर नाम है? उसमें भी वॉल्यूम भी तो ले सकते हैं। हाँ अफसान जी, आप दूसरों को मौका दें अभी, हैं? अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक क्योंकि है, आपको ठीक मालूम होगा है। आंसर इसका। हाँ, शैलेंद्र आप ठीक है, बताएं। ठीक। शैलेंद्र आप बताएं। जी। सो आई थिंक मैंने हम्म, अभी शुरुआत में वही बोला था कि हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी, या ठीक फिर है, जैसा अभी जो अफसाना जी बोल रही थी कि उसका हाँ, वॉल्यूम निकाला जा सकता है कि कितना है वो अच्छा अच्छा, ग्लास का जो भी हाँ। नहीं डाया हाफ ठीक होगा है, हाफ तो उसको। ठीक है, वो हाफ लेवल तक ही भरा है, दैट इज ओके, है ना। लवन ने आप बताएंगे। सर वही मतलब हाफ एम्प्टी, हाफ फिल, ओके एंड या ओके। फिर हम क्वांटिटी वाइज भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और मैं सिरजा से पूछूंगा, सिरजा आप क्या बोलती हैं? सर ग्लास आधा खाली है। आधा खाली है, ठीक है। देखिए आप लोगों यस। ने दो इंटरप्रिटेशन दिए इसके, हाफ फिल और हाफ एम्प्टी। स्टैटिस्टिक्स में जो भी वैल्यू आती है उसके पीछे बहुत सी कहानी छुपी होती है, बहुत सी चीजें छुपी होती हैं। जब भी हमें कोई रिजल्ट मिलता है, कोई न्यूमरिक नंबर या जो भी चीज मिलती है, जो भी वैल्यू मिलती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ संदेश छुपा होता है। और वो संदेश को यदि आप वैल्यू के पीछे की चीज को पकड़ पाए कि ये वैल्यू क्या जताना चाहती है, तो आप डेटा एनालिस्ट बन गए। और वहां जरूरत पड़ती है हमें तजुर्बे की। जैसे इस गिलास ऑफ वाटर की हम बात करें, लोग बोल रहे हैं हाफ एम्प्टी एंड हाफ फिल। में दोनों इंटरप्रिटेशन गलत हैं। सही इंटरप्रिटेशन ये होगा, दिस गिलास इज फुल, हाफ विथ वाटर एंड हाफ विथ एयर। आर यू हम्म। एग्रीड विथ मी? यस। यस सर। इस गिलास में आधा पानी है और आधा हवा है हवा है है। ना। हम आधा खाली नहीं बोल सकते, इसको हवा है वहां। हम्म।
तो यही चीज तो हमें देखना है कि जो चीज हमें उस वैल्यू में, वैल्यू जो बोल रही है वो तो ठीक है, पर उसके पहले क्या चीज छुपी है। यदि आप उस चीज को निकालना सीख गए उस वैल्यू में से, तो आप डेटा एनालिस्ट हो गए। ठीक है ना। तो ये चीजें जो आती हैं, ये सब चीजें किससे आती हैं? एक्सपीरियंस से आती हैं। व्हाट इट। हम्म। इसीलिए ये एक आर्ट भी है। जी स्टैटिस्टिक्स आर्ट क्या होता है? आपको कोई म्यूजिक सीखना है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, एक्सपीरियंस तो चाहिए उसमें। आप फर्स्ट डे से यदि मैं हम्म। सोचूं कि यार वायलिन खरीद को बजाने लगूं, सही है। तो पड़ोसी आके मेरे को पीट के चले जाएंगे, है ना। करेक्ट। इस तरह का बजेगा। ऐसे ही है। हम्म। तो उसके लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए। तो जहाँ भी बिल्कुल। इस तरह की चीजें होती हैं, इसलिए आर्ट है कि इसके इंटरप्रिटेशन के लिए हमें बहुत धीरे धीरे तजुर्बे के साथ समझ में आते हैं हम किस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। गॉट इट। जी किसी चीज को यस। मैं पॉजिटिव भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ, नेगेटिव भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि एक हस्बैंड वाइफ किसी ज्योतिष के पास गए दिखाने, एस्ट्रोलॉजर के पास। तो उसने देखा कि हस्बैंड की जो उम्र है वो अल्पायु है, कम उम्र है एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में। और उस ज्योतिष ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि आपके पति जल्दी मर जाएंगे। तो क्या हाल किया होगा उसकी वाइफ ने? हम्म। उसको तो पीट पीट के ज्योतिष की तो हालत बिगाड़ दी होगी, गालियां बहुत बकी होंगी, उसको बहुत सुनाया होगा। वहीं एक ज्योतिष इसको दूसरे तरीके से बोलता है, भाभी जी आप बहुत अच्छा लंबा स्वस्थ जिएंगी। बात उसने वही बोली। गॉट इट। भाभी जी आप बहुत स्वस्थ रहेंगी और लंबे जीवन जिएंगी। उसने ये नहीं बोला कि आपके पति जल्दी जाएंगे। डज इट हम्म। मेक सेंस टू यू? हेलो। आपकी आवाज बीच में कट रही है थोड़ी। हाँ एक सेकंड में जरा कनेक्शन देख लेता हूँ, कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। इज इट क्लियर नाउ? जी जी। यस सर। हाँ कुछ वायर वगैरह लूज कहीं से हो गया है। ओके। ओके। तो समझ में आया आपको कि इंटरप्रिटेशन यस। रिक्वायर सम एक्सपीरियंस। यस। ठीक है। हम्म। यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया। बाकी की मैं स्लाइड्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार रीड करिएगा, हम आगे के सेशंस में उसको डिस्कस करेंगे। जैसे डेटा ठीक होगा। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है सब इसमें, है ना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हम्म। इंग्लिश में है, बहुत सिंपल इंग्लिश में है। आप पढ़ेंगे एक बार में समझ हम्म। में आएगा। डेटा रेंगलिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, ठीक है, और डेटा हम्म। वेयर हाउसिंग क्या होता है। इज इट क्लियर? डेटा यस। फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, फीचर सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है। जी जी। तो ये सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्योंकि हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है। जस्ट यस, इज वर्किंग? सो हम ये बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सॉरी, इसके पहले एक चीज हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं, जो मिस कर गए हम। मैंने स्टेटिस्टिक्स का तो डेफिनेशन आपको बता दिया, पर मैं दूसरे जो डोमेन्स हैं, हाँ, उसके हमने डिस्कस नहीं किया। पहले हम उसको और डिस्कस कर लें। स्टेटिस्टिक्स तो समझ में आ गया क्या होता है। अब डेटा एनालिटिक्स क्या होता है या डेटा एनालिसिस क्या होता है? तो डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है ना, ऑफ इंस्पेक्टिंग, क्लींजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डेटा। मतलब डेटा को इंस्पेक्ट करना। देखिए आपके पास यदि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है एक एक्सेल शीट में, मान लीजिए आपके पास 5,000 ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5,000 ऑब्जर्वेशन है और 20-25 कॉलम है। तो क्या है, आप
एक ग्लिम्स में उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं डेटा को? बताइए, नो। इज इट नो। पॉसिबल? नो। नहीं है ना। तो जो डेटा एनालिसिस है, जो डेटा एनालिटिक्स है, ये एक प्रोसेस है। ये हमें बताता है, एक उसको प्रोसेस मतलब एक तरीका है कि डेटा को इंस्पेक्ट करने का। ओके, हाउ टू इंस्पेक्ट द डेटा, हम किस तरीके से डेटा को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हमारे पास लैक्स ऑफ रोज होती हैं, मिलियंस ऑफ रोज होती हैं। तो हम उसको कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, उस वेरिएबल को कैसे समझेंगे? तो इंस्पेक्ट करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है, वो ये बताता है डेटा एनालिटिक्स। क्लीन करने का एक तरीका होता है, डेटा को कैसे क्लीन करा जाए, ये भी हमें डेटा एनालिटिक्स में होता है। ट्रांसफॉर्म करना, एक डेटा से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना डेटा को एक फॉर्मेट से, वो भी डेटा एनालिटिक्स के थ्रू होता है। और मॉडलिंग भी डेटा एनालिटिक्स के थ्रू होती है। तो ये सब डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम, पर डेटा को इंस्पेक्ट करने के लिए हम हेल्प किसकी लेते हैं? स्टैटिस्टिक्स की लेते हैं। ठीक है ना, अलग अलग मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब की हम हेल्प लेकर के डेटा को इंस्पेक्ट करते हैं, डेटा को समझ पाते हैं, उनके नेचर को समझ पाते हैं, उसके बिहेवियर को समझ पाते हैं। बिना स्टैटिस्टिक्स के हम डेटा को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। विदाउट द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी कुड नॉट इंस्पेक्ट द डेटा थ्रू द टूल्स, थ्रू एनी टूल्स। ओके, विद द गोल ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो मॉडलिंग वगैरह जो हम करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने के लिए, इंफॉर्मिंग कंक्लूजन, क्या उसका कंक्लूजन होना चाहिए जो कि डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करे। ठीक है, दिस द डेफिनेशन। फोकस ये जो होता है, इसका इनकम्पसेस रेंज ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में बताता है हमें, इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मैंने बताया है कि बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग टू अनकवर पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। पर्पस इसका जनरली फोकसेस ऑन एक्सट्रैक्टिंग इंसाइट्स फ्रॉम डेटा। इसका जो डेटा एनालिटिक्स का पर्पस जो है वो इंसाइट्स निकालना डेटा से, वेदर फॉर बिजनेस के लिए निकालना हो, आपको साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए निकालना हो, विदाउट ए स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन बिजनेस स्टडी। ठीक है ना। तो ये सब आप इसके अंदर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स ये हो गया। अब हम आते हैं आगे बिजनेस एनालिटिक्स। मैंने बताया कि बिजनेस एनालिटिक्स ऑल्सो इट इज द सब डोमेन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, है ना। ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ बात करते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स रिफर्स टू द प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस है, वो प्रोसेस थी। डेटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस और बिजनेस एनालिटिक्स इज अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस को यूज करने का एक प्रैक्टिस है ना। एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यहाँ भी वही सब चीजें हैं। डेटा एनालिसिस का सब डोमेन है तो डेटा एनालिटिक्स तो आएगा ही, स्टैटिस्टिक्स तो कोर है, वो भी आएगा। टू गेन इनसाइट्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। मैं यहाँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस एनालिटिक्स यानी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम कुछ करते हैं। So it involves the exploration, interpretation and visualization of data to uncover patterns. यहाँ भी वही सब चीजें होती हैं, डेटा को एक्सप्लोर करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको विजुलाइज करना, है ना। पैटर्न को समझने के लिए पैटर्न को अनकवर करना, कि जो पैटर्न छुपे हुए हैं उन पैटर्न को अनकवर करना, ट्रेंड्स को अनकवर करना। और जो कोरिलेशन यदि कुछ वेरिएबल्स के बीच में हो रहा है तो उस कोरिलेशंस को जज करना, दैट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्टिमाइज देयर ऑपरेशन। वो अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इंप्रूव परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं और एक अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज द बिजनेस एनालिस्ट वर्क। नाउ फोकस करें, यदि हम इस पे फोकस देखें किस पे रहता है, तो emphasizes the application of advanced statistical and quantitative methods to identify trends, patterns and future business scenarios. तो यहाँ भी जो एडवांस स्टैटिस्टिक्स मेथड्स हैं वो हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन उसके, है ना। और पर्पस जो है, एम्स टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमाइज प्रोसेस एंड प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये इसके अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस की। एक बिजनेस इंटेलिजेंस का नाम भी सुना होगा, यस सर। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स भी बोलते हैं उसको, बीआई। बिजनेस एनालिटिक्स तो हमने समझ लिया, अब बीआई क्या है। सो बीआई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ भी वही काम है, पर यहाँ पर हम लोग जो है प्राइमरी कंसर्न विद द रिपोर्टिंग हिस्टोरिकल डेटा जो है, इसको रिपोर्ट करने के लिए हम बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। हम डैशबोर्ड बनाते हैं, जहाँ पावर बीआई हम लोग यूज करेंगे। एक्सेल पे भी डैशबोर्ड बनता है, पर एक्सेल पे डैशबोर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
क्योंकि जो भी हम बटन यूज करते हैं, जो भी डेटा से हम कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ कनेक्शन प्रोवाइड करवाना होता है, दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट लेके आया कि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो ड्रैग ड्रॉप टाइप चीज है। वो आराम से आप उस पर डैशबोर्ड बना सकते हैं, ज़्यादा उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कनेक्शन वगैरह बिठाने में। ऐसा ही टैबलू भी एक टूल है डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए, क्लिक व्यू भी एक टूल है। तो हम हमारी जो कोर्स में कवर करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई हम लोग डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए देखेंगे, है ना। बाकी का हम एनालिसिस करेंगे एक्सेल पे, ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे, सब कुछ डायनेमिक ग्राफ भी बताऊंगा आपको। बट डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे पावर बीआई पे, एंड प्रोवाइडिंग द कंप्रेहेंसिव व्यू ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं हर जगह, उसको भी हम उसको भी व्यू दे सकते हैं कंप्रेहेंसिव, उससे इजीली लोगों को समझ में आ जाए। फोकसेस ऑन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पे, इस पे ज़्यादा फोकस होता है, ना कि मशीन लर्निंग पे। आपने देखा होगा कि पिछले वाले पार्ट में हमने जब बिजनेस एनालिटिक्स की बात करी थी, ये पिछली स्लाइड में, या हम बात कर रहे हैं ट्रेंड और मेथड्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं पैटर्न्स को अनकवर करने की, ट्रेंड को देखने की, है ना, बिजनेस एनालिटिक्स में। और ये प्रिडिक्शन भी आता है इसमें, है ना, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग भी आती है, जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, वो बिजनेस एनालिटिक्स में यूज होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज नहीं हो रहा वो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ हम हिस्टोरिकल डेटा लेके हम खाली बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि भाई क्या है। अब जो इन प्रवीण सब, जी, हाँ जी, ये अभी आपने बताया जैसे टैबलू है और पावर बीआई है, जी तो जी, ये जो मेटाबेस है ये भी इन्हीं की तरह काम करता है, या एक मेटाबेस भी होता है ना? हाँ मेटाबेस भी होता है, वो भी इसी वो काम करता है। टैबलू और पावर बीआई से किस तरह से डिफरेंट है, या सेम काम करता है? सेम ही काम करते हैं, थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी अलग रहती हैं, बट ओके। जो मार्केट में इस टाइम ज़्यादा ट्रेंड में है जी। वो पावर बीआई और टैबल्यू है। ओके। ठीक है ना, तो वो एक एक टूल आ गया तो आप दूसरा टूल इजीली सीख सकते हो। जी। ऑलमोस्ट फंक्शनैलिटी 80-90% सेम होती है। हम्म। ठीक है ना, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपने ठीक। यदि एक दो टूल समझ लिए तो आपको मालूम चल जाता है मेजर क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, सब में वही चीज़ें, वही कहानी होती है। जी जी। ठीक है, बस ठीक। उसके नेविगेशन अलग अलग रहते हैं, बाकी बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है, अब हम आते हैं जो ओवरऑल अम्ब्रेला है इन सब का, डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है, हमने ये देखा। स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमने देखा। डेटा एनालिटिक्स क्या है, हमने देखा। बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, हमने देखा। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। अब हम देखें डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट एनकम्पासेस सभी चीज़ों को, इसी के अंदर में आती है। डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा माइनिंग हो, मशीन लर्निंग हो, एंड सेवरल अदर रिलेटेड डिसिप्लिन, वो सब इसी में आ जाते हैं। एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेस, एल्गोरिथम एंड सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इंसाइट्स फ्रॉम मेनी स्ट्रक्चरल एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना। डेटा साइंस इज रिलेटेड टू डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा। ये सब डेटा साइंस में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कुछ जी। कंफ्यूजन, कोई यस प्रश्न सर। किसी के पास? नो नो। कंफ्यूजन। है ना, ये मैंने शेयर किया हुआ है पूरा पीपीटी, तो आप इसको एक बार पढ़िएगा, जी। है ना। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है लास्ट में, व्हाट इज फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स? क्या होती है पहली स्टैटिस्टिक्स, क्या होती है? आपने पढ़ा है ना, स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है मीन, मोड, मीडियन हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये सब आंकड़ों की स्टैटिस्टिक्स है। गणना करना अगर बोला जाए तो। नहीं, वो तो एक है। पहली स्टैटिस्टिक्स आप किसको बोल, स्टैटिस्टिक्स यानी जैसे मीन है वो एक स्टैटिस्टिक्स है, जी। मीडियन है वो एक स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, ओके। ऐसे ही औसत। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिक्स है, जी। प्रोबेबिलिटी एक स्टैटिस्टिक्स है। जी। तो पहली स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, कहाँ से स्टेट से स्टार्ट होता है? फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है? ग्राफ। नहीं, ग्राफ तो एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, ओके। स्टैटिस्टिक्स थोड़ी है। स्टैटिस्टिक्स जो हम कंप्यूट करके निकालते हैं, ओके। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वगैरह, ये सब स्टैटिस्टिक्स है। अनुमान लगाना। अनुमान लगाना तो एक वो हमारा प्रोसेस हो गया ना, अनुमान जी। लगा रहे हैं हम। स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि कौन सी, पहले स्टैटिस्टिक्स आप मीन को मानेंगे, मीडियन को मानेंगे, मोड को मानेंगे? मीन।
मीन को मानेंगे। उनको जी। और मीन और एवरेज एक ही चीज होती है या हाँ, एवरेज उनको? एक ही चीज है, एक ही चीज एवरेज मानेंगे अभी एक अपन, ही एक ही चीज चीज है ये। मान रहे हैं उसको। ठीक है, तो फिर मीन को ही पहला मानेंगे, सबसे आसान और सबसे शुरुआती चीज मुझे जो लगती है वो मीन ठीक ही है, है। मीन आप जो निकालेंगे वो किसी कैटेगरिकल वेरिएबल का मीन निकाल सकते हैं क्या? कैटेगोरिकल वेरिएबल मीन? जैसे जेंडर है, मेल फीमेल नो। ट्रांसजेंडर, आप मीन नहीं, निकाल इनका नहीं सकते हैं निकल इसका? सकता। नहीं। नहीं नहीं निकल सकता। निकाल सकते, है ना? जी, नंबर्स का ही निकलता है। तो कैसे होगी? हम्म, कैसे पहली स्टैटिस्टिक्स होगी, जी। है ना? देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, आप कैटेगरिकल डेटा का परसेंटेज निकाल सकते हैं। हाँ। नहीं। आपको ले फ्रीक्वेंसी कितना पता चल परसेंट है? जाए किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी। है तो आपको उससे परसेंटेज निकाल अच्छा। सकते हैं ना। जी। हाँ सर। हम पाई हम्म। चार्ट में परसेंटेज शो करते हैं, बार प्लॉट में भी परसेंटेज शो करते हैं, हम्म। ठीक है ना? हम्म ऐसे ही आप कंटिन्यूअस डेटा है उसके क्लास इंटरवल बना करके और उनके परसेंटेज ले सकते हैं। हाँ। लेकिन अभी आप जैसे बोल रहे हैं परसेंटेज, ऐसे तो मीन भी निकाला जा सकता है ना? नहीं, कैटेगरिकल डेटा का कैसे निकलेगा मीन? अभी जैसे कैटेगरिकल डेटा की हम बात करें जेंडर का, तो इनका हाँ, हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज मान लो 15 मेल है, 20 हाँ। फीमेल हैं और 5 ट्रांसजेंडर हैं, तो टोटल हम्म। से हम जो उसकी संख्या को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको, प्रोपोर्शन इसी लेके। तरह से हम मीन भी निकाल लेंगे कि इतना टोटल, अगर मान लीजिए 50 मेल हैं और उनको मीन, उनको काउंट प्लस करके। नहीं ना, नहीं मीन देखिए साहब, मीन मेल का नहीं निकल फार्मूला होता सकता है, उसमें, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मीन मीन का मेल फार्मूला है होता है वैल्यूज। ट्रांसजेंडर है? वैल्यूज को आप सम अप करते हैं, जितनी भी हाँ। वैल्यूज हैं, और उसको डिवाइड करते हैं टोटल काउंट से। हाँ। तो यहाँ तो वैल्यूज नहीं है ना, यहाँ तो फ्रिक्वेंसी है, ऊपर भी काउंट है नीचे भी काउंट है। ओके। प्रोपोर्शन में है तो ऊपर भी काउंट होता है नीचे भी काउंट होता है। व्हाट इट। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअली हम लोग परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों, हम्म। बट परसेंटेज क्या है? परसेंटेज एक प्रोपोर्शन है ना। देखिए, एक प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो होता है, दोनों में डिफरेंस समझेंगे हम। प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में टोटल आता है हमेशा, ओके, टोटल काउंट, और न्यूमरेटर में उसका एक पार्ट आता है, ठीक है? जैसे कि मेल है 15 तो 15, और टोटल 60 है तो 15/60 होगा। व्हाट माई पॉइंट? ऐसे ही। दिस इज द यस। प्रोपोर्शन। रेशियो में ऊपर न्यूमरेटर भी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। रेशियो किसी भी चीज का हो सकता है। व्हाट इट। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि उसका कुछ पोर्शन, ओके, किस पोर्शन, कितना पोर्शन, जनरल प्रोपोर्शन। डज इट मेक सेंस टू यू? और यस। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और यही चीज तो प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है? फेवरेबल यस। आउटकम ओवर टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक प्रोपोर्शन ही तो है। फेवरेबल यस। आउटकम ओवर टोटल आउटकम। जैसे मैं आपको बताता टोटल हूँ यहाँ आउटकम। पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा फीमेल, फीमेल है मेरे पास 20, मेल 15, और ट्रांसजेंडर मेरे पास है मान लीजिए 5, 35 40 हो जाएगा, 10 मान लीजिए। टोटल कितना हुआ? 45 वन। इज इट क्लियर? यस, यस। शैलेंद्र यस जी। सर। यस, यस यस, सर। यस। 45। अब मैं इसका प्रोपोर्शन देखूं या इसकी प्रोबेबिलिटी देखूं, जी। ये हुआ ना हाँ सर। 20/45। जी। इज इट क्लियर? तो ये जी। कितना हो जाएगा? 4/9। व्हाट इट। ये यस सर। 15/45, 1/3, 3। 3। है ना? ये 10/45, 2/9। इज इट क्लियर? जी। यस। है ना? इसी को यदि डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूं मैं, सिंप्लीफाई करके, तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गई। ये प्रोबेबिलिटी जी। तो है। जी। जी। इज इट क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे अपन ने ये फीमेल मेल और ट्रांसजेंडर निकाला, तो ये तो हमको पहले से ही पता है ना कि पहले से पता 20 है ना। फीमेल है हाँ और 15 मेल है और 10 ट्रांसजेंडर है। हाँ, तो अब हम इसमें से निकाल क्या रहे थे मतलब? देखिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स परसेंटेज क्यों बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी से ही चालू होता है। प्रोबेबिलिटी एक प्रकार से प्रोपोर्शन अच्छा। है ना। प्रोबेबिलिटी
प्रोपोर्शन यदि हम बोलें, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक अनुमान है, ठीक हाँ है ना। हाँ हाँ और ठीक है। इसको हम प्रोपोर्शन ही बोल सकते हैं ना एक प्रकार से, हाँ करंट हाँ। सिनेरियो में। हम्म। मैं बिल्कुल इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, इट इज सिमिलर टू हाँ प्रोपोर्शन हाँ हाँ हाँ। ना। तो यदि इस प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन को मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया। है ना। तो हम कहीं भी डेटा को, कैटेगरिकल डेटा को काहे में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में। यदि मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, आपको ये फिगर नहीं बताता हूँ मेल और ट्रांसजेंडर के, मैं बोलता हूँ कि किसी फंक्शन में 20 फीमेल्स थी, तो आप कुछ एनालिसिस कर पा रहे हैं उससे? नहीं। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं। है ना। हम्म। तो यदि मैं इसकी जगह ये बोलूं कि वहां पर आप ये मान लें कि जैसे 9/4 को यदि हम देखें, 4/9 इंटू 100%, यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है। एक सेकंड में कैलकुलेटर लेके इसको करके बता देता हूँ। 4/9, है ना, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, 44%। ओके, हम्म। हम्म। 44% हो रहा है। तो यदि मैं बोलूं कि 44% फीमेल थी, तो अब आप एनालाइज कर पाते हैं कि बाकी के दूसरे जेंडर होंगे। हाँ करेक्ट। इज इट क्लियर, यस सर। है ना। क्लियर क्लियर। तो थैंक यू। यदि हम खाली काउंट दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यदि हम इंडिविजुअल कैटेगरी की दे रहे हैं तो हमें कोई हम्म। उसका, उससे हम कुछ भी चीज नहीं निकाल सकते। यदि वहां हम परसेंटेज बिल्कुल। फॉर्म में दे दें, तो परसेंटेज क्योंकि एक रिलेटिव मेजर है, प्रोबेबिलिटी एक हम्म। रिलेटिव मेजर है, इनकी एक रेंज होती है 0 से 100 परसेंटेज की, हम्म। प्रोबेबिलिटी की 0 से 1 होती है। तो जहां फिनाइट हम्म। रेंज आती है वहां पर हम एनालाइज अच्छे से कर सकते बिल्कुल। हैं। गॉट इट, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो यस पहली सर। यस सर। स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी है, और लास्ट स्टैटिस्टिक्स भी प्रोबेबिलिटी होती है। इसके बीच में सब कुछ आता बिल्कुल। है, मीन मोड मीडियन। हम्म। स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत भी प्रोबेबिलिटी से होती है और उसका एंड भी प्रोबेबिलिटी पे होता है। अब एंड कैसे प्रोबेबिलिटी पे होता है, यदि आप में से कुछ लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी होगी, तो हम कंक्लूड कैसे करते हैं, पी वैल्यू से कंक्लूड करते हैं ना। पी वैल्यू जी 0.05 से कम है जी तो हमारी नल हम्म। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाती है, और उससे ज्यादा है तो एक्सेप्ट हो जाती है। ऐसे ही एक्सेप्ट हो कुछ जाती हैं। है ना। तो और ऐसे ही जो जितने भी चैटबॉट वगैरह हैं, जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल हैं, वो सब भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं। वो भी फाइनल डिसीजन जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी उसी हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। व्हाट माई पॉइंट। यस सर। यस सर। बिना प्रोबेबिलिटी के पॉसिबल ही नहीं है कुछ, ठीक है। हम्म। जी तो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग भी स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी से होती है और एंड भी प्रोबेबिलिटी पे होता है। व्हाट बिल्कुल। माई पॉइंट, जी यस। इज इट क्लियर। यस अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। जस्ट अ मोमेंट, हियर इज माय स्लाइड। सो हमने ये सब चीजें समझ लिया, डेटा साइंस तक का हमारा कवर हो गया पूरा। अब हम वापस से समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या टाइम हो गया, 8:35 8:35, अभी 9 तक है ना अपना, तो ठीक। जी ओके, सो हम वापस आते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे हैं डेटा के, हम्म। ठीक है। हम उन सब क्लासिफिकेशन की बात नहीं करेंगे। डेटा एनालिटिक्स में जो हाइब्रिड क्लासिफिकेशन है हम उसकी बात करेंगे। तो यदि आप यहाँ देखें तो हमने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक कैटेगरिकल डेटा और दूसरा होता है न्यूमेरिक डेटा। ओके, ओके। दो तरह का डेटा है। कैटेगरी का मतलब, जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं, जेंडर, है ना, जैसे पिछले केस में बिल्कुल। लिया था। जेंडर में यदि आप देखेंगे, मेल, फीमेल और हम्म। ट्रांस, तीन कैटेगरी हैं। ओके, ऐसे ही मैं एजुकेशन ले लूं, और एजुकेशन की जो कैटेगरीज है मैं रेंडमली लिख रहा हूँ, है ना, एक सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, इसके बाद हम्म। मैंने लिख दिया हम्म। हाई स्कूल। हम्म। ओके,
इसके बाद लिख दिया मैंने इलिटरेट। हम्म, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ आपका पीएचडी। हम्म देन मैं ग्रेजुएट हम्म प्राइमरी स्कूल, है ना, प्राइमरी एजुकेशन। देन इसके हम्म बाद में आ जाता हूँ इंटर स्कूल, 12th। और इसके बाद आ जाता हूँ मिडिल। इज इट क्लियर? यस जी यस अब ये दो चीजें मेरे पास हैं। यदि मैं यहाँ आपको एजुकेशन की बात करूं, मैं बोलूं कि आप इसको एक ऑर्डर दो, है ना, इसको एक ऑर्डर दो हम्म कि जो सबसे ठीक लोएस्ट है एजुकेशन है उसको 1 देना है, जो उससे ज्यादा है उसको हम्म 2 देना है। तो आप बताएं ठीक क्या है। ऑर्डर आएंगे इसके। सबसे कम को वर्क देता है। सबसे कम को 1 देना है, बताइए। सिरजा आप बताएं। और बताइए सबसे पहला क्या आएगा, Hi. सबसे सर लोएस्ट। हाँ, लवन ने बोले। कैन आई आस्क यू वन थिंग, ये यस। थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? हाई इलिटरेट, स्कूल के। इलिटरेट, इलिटरेट। ओके, इलिटरेट। इलिटरेट। तो सर 7, क्या आएगा? पीजी 7, पीजी के लिए 7। नहीं, आप यहाँ से बोले इधर से, इस हिसाब से इलिटरेट 1 हो गया, दूसरा क्या होगा? हाँ, इलिटरेट 1 हो गया। ओके, देन प्राइमरी 2nd। हम्म। हम्म, ठीक है, एंड इंटर स्कूल 3rd। इंटर नहीं स्कूल सॉरी, तो मिडिल 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 मिडिल। 3rd। मिडिल सॉरी, थर्ड। मिडिल मिडिल फिर 3rd। इंटर। हम्म। हाई स्कूल 4, हम्म। इंटर स्कूल इंटर 5। हम्म। देन व्हाट इज आफ्टर पीएचडी? ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, राइट? ग्रेजुएट। हाँ, ग्रेजुएट। देन हाँ, 6, ग्रेजुएशन। 6। हाँ, करेक्ट। 7 पीजी पीजी। एंड देन हम्म। पीएचडी। करेक्ट। या कोई भी हम्म व्यक्ति यदि एजुकेशन का थोड़ा सा भी नॉलेज है, सेम ऑर्डर देगा कि नहीं देगा इसके? बिल्कुल सेम आ रहा है सबका। सबका सेम आएगा ना ऑर्डर? ऐसा तो नहीं है कि कोई हम्म पीएचडी को 1 दे देगा और इसको 8 दे देगा, ऐसा तो नहीं है ना? हम्म जी नहीं। बिल्कुल। इज इट क्लियर? एवरीबॉडी विल गिव द सेम ऑर्डर। यदि यही ऑर्डर मैं आपको जेंडर में देने का बोलूं तो क्या सबके ऑर्डर सेम होंगे? नो। नहीं, हैं? नहीं नहीं सर, ये नहीं नहीं दे होंगे ना? सकते। तो नहीं। कैटेगरिकल डेटा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है आपका नॉमिनल डेटा। क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल। और दूसरा है ऑर्डरेबल। हम्म नॉमिनल ये हो गया जिसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, जैसे जेंडर है ना, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, इनको हम कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। पर ऑर्डरेबल वो गया जिनको हम ऑर्डर दे सकते हैं, और हर हर कोई उसको यूनिफॉर्म ऑर्डर ही देगा, एक जैसे ही ऑर्डर देगा। गॉट इट? यस है ना? समझ में आया? ऐसे यस हम सर। लोग लिकट टाइप बिल्कुल। स्केल भी यूज करते हैं ना, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नॉट सर्टेन, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। उसमें भी ऑर्डर देते हैं ना, 1 2 3 4 5। गॉट जी इट? क्वेश्चन ईयर में आपने यस। कहीं पढ़े होंगे, वो भी ऑर्डरेबल। तो ये जो जिनको हम ऑर्डर दे सकते हैं वो ऑर्डरेबल डेटा होता है। तो कैटेगरिकल डेटा 2 फॉर्मेट में हो गया हमारे पास, नॉमिनल और ऑर्डरेबल। ओके, हम्म 2 तरह का हो गया। अब यदि न्यूमरिक डेटा की बात करें, तो न्यूमरिक डेटा जो है, एक तो है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1 में। ओके, ठीक 0 है। और 1, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कैटेगरिकल डेटा है यस नो के फॉर्म में, है ना, तो आप इसको बाइनरी में हम्म कन्वर्ट कर सकते हो, यस फॉर 1, नो हम्म फॉर 0। हम्म इज इट क्लियर? ठीक है। ट्रू फॉल्स है, इसको भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस। जी बाइनरी में, यस। है ना? तो इसमें कई बार हमें एनालिसिस में जितने भी नॉमिनल डेटा है जेंडर जैसे, इसको भी हमें नंबर फॉर्म में चाहिए। ऑर्डर तो हम दे नहीं सकते इसको कि मैं ऑर्डर मेल को 1 दूंगा, हम्म आप फीमेल को 1 दोगे, है ना? सब अलग अलग हिसाब के ऑर्डर हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे बाइनरी करें कि जो एक जैसा हो? तो हम क्या करते हैं, इसमें डमी वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे जेंडर है, मैं देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। हर हम्म डेटा को हम न्यूमरिक में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना, जितनी भी मोस्टली एल्गोरिथम है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब नंबर को समझती हैं।
शब्दों को नहीं समझती है। ठीक है, सही। तो अब जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ कि जेंडर है मेरे पास एक वेरिएबल, और यहाँ मैं कुछ जेंडर लिख रहा हूँ कि मेल है, दूसरा भी मेल है, तीसरा ट्रांसजेंडर है, फिर फीमेल है, फिर ट्रांसजेंडर है, फिर फीमेल है, फिर फीमेल है, और फिर मेल है। इस तरह से मेरे पास डेटा है। गॉट इट? ऐसा यस। डेटा है, बहुत सारा डेटा है मतलब। तो मैं क्या करूंगा, जब डमी वेरिएबल बनाऊंगा ना, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इसके अंदर, जेंडर एम, मेल के लिए। एक होगा जेंडर एफ, इज इट क्लियर? एक होगा जेंडर टी, ट्रांसजेंडर के लिए। गॉट इट? समझ में आया? जितनी यस। कैटेगरी हैं उतने डमी वेरिएबल बना लूंगा मैं। 3 कैटेगरी हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, 3 डमी वेरिएबल बन गए मेरे। अब जहां भी मेल है तो मेल वाले कॉलम में 1 लिखूंगा, बाकी क्योंकि मेल है वो फीमेल नहीं है ना वो ट्रांसजेंडर है। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। यहाँ भी, यहाँ 1 0 0, यहाँ 0 0 1, इज इट क्लियर? यस। 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 और 1 0 0। अब समझ में आ गया? यस सर। तो जो नॉमिनल डेटा है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डमी वेरिएबल के थ्रू बाइनरी डेटा में। इज इट क्लियर? 0 1 के फॉर्मेट। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। पहला चीज। दूसरा चीज, जो ऑर्डरेबल डेटा था उससे बनता है ऑर्डिनल डेटा। कौन सा बनता है हमारा? ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, तो ऑर्डिन यदि मैं इसकी जगह, इन कैटेगरीज की जगह, इन स्ट्रिंग की जगह, पीजी, हाई स्कूल, एडिटेड की जगह मैं यदि ये नंबर यूज करूं, ये ऑर्डर यूज करूं, तो ऑर्डिनल हो जाएगा ये। गॉट इट? न्यूमरिक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? आई एम नॉट यूजिंग पीजी हाई स्कूल, आई एम यूजिंग 1 2 3, जो जो आपने ऑर्डर दिए मैं उनको यूज कर रहा हूँ, तो ऑर्डिनल हो गया, न्यूमरिक हो गया ये। इज इट क्लियर? यस सर। यस। इसमें एक चीज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही है हाँ कि पूछे। जैसे अभी आपने बताया कि हम वो डमी वेरिएबल बना लेंगे, हाँ हाँ तो जो डमी वेरिएबल बना लिया, यानी हर वेरिएबल को हम एक ही असाइन कर रहे हैं, जैसे हाँ वो ट्रू और फॉल्स हो रहा था, जी। तो यानी कि उतने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ना कि हाँ, वेरिएबल जितनी को आप। कैटेगरी होंगी, जितनी कैटेगरी होंगी उतने वेरिएबल। जैसे 3 अच्छा। कैटेगरी है ना, तो 3 ही बनाए जी। मैंने। जी। ठीक है ना? ठीक है। 5 होती तो जी। 5 डमी वेरिएबल बना लेता। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिएगा, यदि मान लो मेल की इनकम है 10,000 रुपीज, है ना, जी। और फीमेल की है 8,000 रुपीज, और ट्रांसजेंडर की है 5,000 रुपीज। यदि मैं इसको ऑर्डर दे देता, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर को 1 2 3, जी। मेल को 1 देता मैं, फीमेल को 2 देता और ट्रांसजेंडर को 3 देता, तो ये ऑर्डर के हिसाब से यदि मैं मल्टीप्लाई करता तो मेल तो हमेशा 1 से ही मल्टीप्लाई होता, हम्म। फीमेल 2 से मल्टीप्लाई होता, तो एक फीमेल की इनकम कितनी, 8,000 इंटू 2, तो 16,000 बताता। ये गलत हो जाता कि जी। नहीं मेरे लिए? जी। है ना? और ट्रांसजेंडर की इनकम खाली 5,000 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता यदि ऑर्डर दिया होता मैंने, तो 15,000 बताता है उसकी इनकम। तो मेरा तो पूरा एनालिसिस ही गड़बड़ हो गया ना इसमें। बिल्कुल। यदि मैं इसमें ऐसा करूं कि जो इनकम है, मेल की इनकम है मान लो 10,000, है ना, और मैं इधर लिखूं मेल जेंडर एम प्लस जेंडर एफ प्लस जेंडर टी। ओके, इज इट क्लियर? प्लस यस। 8,000 जेंडर एम प्लस जेंडर एफ प्लस जेंडर टी, इसी प्रकार से प्लस, ऐसे करके मैं लिख दूं। इज इट क्लियर? तो क्या होगा हम्म। कि अब यहां पर मेल में 1 आएगा, बाकी में 0 हो जाएंगे, बिल्कुल। तो मुझे 10,000 ही मिलेगा ना आउटपुट। यहां पर फीमेल में 1 आएगा, बाकी में 0 हो जाएंगे, तो कितना मिलेगा मुझे आउटपुट? 8,000 ही मिलेगा ना, 16,000 तो नहीं हुआ यहाँ पे। हम्म। इज इट क्लियर? यस। एक कोई वैसा एग्जांपल देकर बता सकते हैं आप कि मान लीजिए हमको कोई डेटा लेना है या कोई हाँ। डेटा आया है और हम्म
हमको फिर उसमें ये असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये 2 में 0 हम अभी क्यों लगा रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे वो 10,000। देखिए यहाँ पर यदि मेल ही है तो यहाँ तो सब जगह यहाँ जो है ना, मैंने खाली इसको समझाने के लिए आपको बताई ये चीज कि यहाँ जी पर जी। तीनों तो लेंगे नहीं। मेल की बात कर रहे हैं तो 10,000 ही यूज होगा, है ना। हम्म। फीमेल की बात करेंगे तो 8,000 यूज होगा। और ये यहाँ पर हम लोग को डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में यूज नहीं होगा ये हमें। जब हम मशीन लर्निंग में जाएंगे ना तब मैं इसकी जो लीनियर रिग्रेशन बताऊंगा, यहाँ वहां मैं इसकी उपयोगिता आपको अच्छा बताऊंगा कि अच्छा। क्या जी उपयोग जी। होता है। यहाँ हाँ, भी क्योंकि आपको जो समझ में भी नहीं आएगा। जो आपने वो बताया कॉन्सेप्ट वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, वही मतलब उसका ये बेसिक। इसका यूज जो है ना वो हाँ। आपके प्रेडिक्टिव एनालिसिस में है, वो जी भी कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिथम में। जी। ठीक है ना। तो अभी ठीक अपन है। उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, खाली मैंने बताया कि हाँ डमी वेरिएबल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं जी जी कैटेगरिकल जी। को 0 1 के फॉर्मेट में। ठीक है। ठीक है ना। ये अपन को जी खाली अभी समझ दिमाग में रखना है कि हाँ ये बाइनरी बनाया जा सकता है नॉमिनल जी। से। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, ये सब डेटा है, बाइनरी भी डेटा है और ऑर्डिनल भी डेटा है, स्केल नहीं है ये। अब जी हम बात करेंगे स्केल की। दो स्केल होते हैं हमारे, एक होता है इंटरवल स्केल और एक, मैं थोड़ा सा राइटिंग क्लियर करता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आती है। मैं ऐसा ही कई बार जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ। इंटरवल जी और रेशियो क्लियर हो रहा है, राइटिंग समझ में आ रहा है आप सबको। जी जी। जी बिल्कुल। थोड़े से बड़े लेटर क्लियर दिखते हैं। ये क्योंकि कुछ किसी नोट्स में भी होगा क्या, ये हाँ हमारी कोई नोट्स भी पीपीटी में? मिलेंगे आपको, इसके नोट्स भी उस मिलेंगे उसमें ये क्लियर। सब होगा कि हाँ ये सब बाइनरी होगा, पूरा ऑर्डिनल? होगा, जी जी जी। है ना। ठीक है। इंटरवल और रेशियो ये स्केल हैं दोनों। अब देखिए स्केल में और डेटा में क्या डिफरेंस है, पहले हम इस चीज को समझें। देखिएगा ऑर्डिनल की मैं बात करूं, स्केल का मतलब होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में सेम डिस्टेंस होना। जैसे अपने रूलर देखा होगा, सेंटीमीटर होता है, एक तरफ इंचेस होता है जी स्केल में। तो 0 से 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 से 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा, बताएं। जी। उतना ही होगा। है ना, सेम रहेगा। 2 से 3 के जी बीच में भी उतना ही रहेगा, 3 से 4 के बिल्कुल। बीच में भी उतना ही रहेगा। जी तो सेम डिस्टेंस होता है। पर यहां पर यदि मैं ऑर्डरेबल ऑर्डिनल डेटा की बात करूं तो आप देखिएगा 1 यानी इलिटरेट और 2 जो है वो है प्राइमरी। गॉट जी इट। जी है ना। कितने साल का, यदि अपन नर्सरी KG1 KG2 हटा दो, कितने साल का अंतर आ रहा है, 5 साल का आ रहा जी जी है ना। 2 से 3 में यदि हम देखें, मिडिल स्कूल और प्राइमरी में 3 साल का डिफरेंस है। जी अब मैं यदि 3 से 4 के बीच में देखूं तो 2 साल का डिफरेंस है, जी मिडिल और हाई स्कूल में 9 10 2 इयर्स। जी हाई स्कूल से यदि मैं इंटर में जाऊं तो भी 2 साल का डिफरेंस है। जी ओके। और इंटर से ग्रेजुएट में जाऊं तो 3 साल भी होता है, 4 साल भी होता है। भाई नॉन टेक्निकल में 3 साल है, टेक्निकल में 4 साल का होता है ग्रेजुएशन, जी बीटेक वगैरह का। ओके। और यदि पीजी में जाऊं यहाँ से तो पीजी के लिए आप देखेंगे कि 2 साल का डिफरेंस है। ओके। और पीएचडी में यदि जाता हूँ पीजी से तो 2 से 6 साल में पीएचडी होती है लोगों की। गॉट माई पॉइंट। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कोई भी दो कंजिक्यूटिव इंटीजर जो आ रहे हैं ऑर्डर के 1 2 3 4 5, उनमें एक जैसा अंतर नहीं है, अलग अलग अंतर है। कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है, कहीं 5 साल है। गॉट इट। जी। गॉट माई पॉइंट। हाँ जी। यदि इस तरह से ऑर्डिनल डेटा है तो जहां अंतर इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्टेंस डेविएशन नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, तो वो डेटा कहलाएगा, ना कि स्केल। गॉट इट। क्योंकि स्केल ही नहीं है ना, स्केल में तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है ना दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में। जी गॉट इट। सबको समझ में आ गया। स्केल किसको बोला जाता है और डेटा किसको बोला जाता है। ऑर्डिनल हमेशा डेटा होगा, स्केल नहीं बोलेंगे हम इसको। ऑर्डिनल और बाइनरी हाँ दोनों ये डेटा ये होगा। ये हमेशा क्या होंगे आपके, डेटा होंगे, डेटा। बाइनरी डेटा है। ठीक जी है। ऑर्डिनल भी डेटा है। जी ठीक। इंटरवल और रेशियो स्केल होते हैं। अब इंटरवल और रेशियो में क्या डिफरेंस है, दोनों स्केल हैं तो स्केल है। बहुत माइनर डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है इसमें, हम उसको समझें सबसे पहले। देखिएगा, और वो जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत प्यारी चीज का होता है, वो होता है जीरो का डिफरेंस। हम्म। जीरो दो तरह के होते हैं। एक जीरो होता है सूडो, झूठा, नकली।
और एक होता है रियल, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, लेवन ने समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, मैं बीच बीच में जगाता रहूंगा, आप लोगों को सो जाते हैं लोग, है ना, नाम ले लेके। मुझे अभी एक दो दिन में सबके नाम कंठस्थ हो जाएंगे पूरे, है ना। वैसे तो हो गए, बिल्कुल। छोटा बैच इसलिए रखता हूँ कि नाम सबके याद रहें और इंटरेक्शन रहे, और आप भी बेफिक्री से बेखौफ क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, कोई भी झिझकने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिली क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन है, आप पूछिए। ठीक है। देखिएगा, सूडो जीरो और रियल जीरो की हम बात करते हैं। मेरे पास एक केस आया था ओएनजीसी का, बॉम्बे की किसी कंपनी ने, वो डेटा एनालिटिक्स का उनका काम था। तो वहाँ उन्होंने डेटा एनालिस्ट तो रखे थे बहुत सारे, और उनको ओएनजीसी को जो वो एनालिसिस करके भेज रहे थे, ओएनजीसी उस चीज को नकार रही थी कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट गलत है। तो जब वो परेशान हो गए तो दे अप्रोच मी थ्रू द लिंक्डइन। लिंक्डइन की भी प्रोफाइलिंग में करवाऊंगा आपकी आगे कोर्स में, कि कैसी बनना चाहिए, कैसे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो मेरे को अप्रोच किया, मैंने कहा ठीक है। मुझे बोला गया कि सर ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आप देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आई वेंट टू मुंबई, और जब मैंने उनका डेटा देखा, ओएनजीसी का डेटा था, तो दो वेरिएबल थे जहाँ सूडो जीरो थे। एक तो सी लेवल, जो समुद्र की सतह होती है उस, वो जीरो पे होती है, उसके ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे नेगेटिव होता है। क्लियर? जी और दूसरा होता है टेम्परेचर। देखिएगा, यदि 0 डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है? क्या देयर इज नो टेम्परेचर? आप क्या बोलेंगे? कोई भी टेम्परेचर नहीं, 0 डिग्री का मतलब, नहीं नहीं है। है नहीं ना, सर है। टेम्परेचर तो है। है ना। माइनस में भी जाता है टेम्परेचर। हाँ, यदि मैं यही चीज में, आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए एग्जाम में, यदि मैं वहां जीरो लिखता हूं किसी ने, तो जीरो का मतलब क्या हुआ? नो मार्क्स। नो नथिंग। मार्क्स। पर यस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम नो टेम्परेचर नहीं बोल सकते। व्हाट माई सर पॉइंट? यस मार्क्स, सर। प्रवीण जी मार्क्स भी तो माइनस में आ जाते हैं। नहीं, माइनस नेगेटिव मार्क्स की बात नहीं कर माइनस रहा हूँ, एक वाले जनरल जो तो एग्जाम्स होते हैं हमारे, हम्म। मैं हम्म। उसकी बात कर रहा हूँ, 0 से 100 वाले जो होते हैं मार्क्स के। हम्म। मैं अभी नेगेटिव में, वो भी फिर भी रियल जीरो रहेगा, ये फिर भी जी रियल जीरो रहेगा नेगेटिव में भी। ओके। देखिए, प्रॉफिट भी नेगेटिव होता। हम्म। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लॉस। तो जीरो प्रॉफिट का मतलब वहां जेन्युइनली जीरो है, वो रियल जीरो हम्म। है हम्म। है ना। हाँ क्योंकि फिर वो लॉस में पर चला गया। हाँ, वहां मतलब नो प्रॉफिट, हम्म। जीरो मतलब नो प्रॉफिट। 0 मार्क्स यानी नो मार्क्स, माइनस यानी नेगेटिव मार्क्स, है ना। तो वो अपन बोल सकते हैं ना उसको कि नो मार्क्स, जी जीरो का मतलब। पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नो टेम्परेचर थोड़ी बोल सकता हूँ। जी चाहिए। दिस इज बिल्कुल। द पॉइंट। अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो और जो सूडो जीरो है उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जो रियल जीरो के पास है। रियल जीरो की प्रॉपर्टी क्या है? यदि आप रियल जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो इसको जीरो कर देगा, हम्म। उसकी वैल्यू जीरो कर देगा। किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। जी उसकी जी ताकत इतनी बढ़ा देगा कि इन्फिनाइट हो जाएगा। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे जीरो हो जाएगा, उसको भी जीरो जी कर देगा। जी तो ये जीरो की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो खाली एब्सोल्यूट जीरो में है, रियल जीरो में है, सूडो जीरो की नहीं है। यदि इस तरह का जीरो आ जाता है और आप कहीं मल्टीप्लीकेशन में उसको यूज कर रहे हो और आप उसको जीरो कर दे रहे हो, तो आपके रिजल्ट कहाँ से सही हो रहा है? बताइए आप। जबकि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी को जीरो कर पाए। जी ठीक है, सही समझ है। में आ रहा है आपको? यस हाँ जी सर। हाँ जी बिल्कुल। सिरजा जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो जब इस तरह का जीरो हमारे पास आता है कि जो सूडो है, तो हमें इसके साथ बहुत केयरफुली ट्रीट करना रहता है। इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि हम छोटे छोटे क्लास इंटरवल बना लें टेम्परेचर के। जैसे मैंने वहां किया था ओएनजीसी में, मैंने क्या किया, 0.02 से जीरो, और जीरो को हमेशा लोअर या अपर लिमिट में जरूर रखें, है ना। उसको मिड में कहीं बिल्कुल। भी ना रखें। ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में 0.02, फिर 0.02 से 0.04। गॉट इट?
इज इट क्लियर? यस। यस मैंने सर। छोटे क्यों लिए? छोटे से क्या होगा, ये डेटा का सेंस एसेंस जो है ना वो चेंज नहीं होगा। यदि हम्म, बड़े इंटरवल ले लूंगा तो डेविएट डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना जी जीरो से। जी जी 0 to 10 करेगा तो 5 वैल्यू देगा, जो कि डिफ्लेक्ट हो रहा है जीरो से जी टेम्परेचर में, है ना? हम्म, अब मैंने जब इसकी मिड वैल्यू लूंगा तो इसकी क्या आएगी, -0.01। हम्म इसकी हम्म 0 प्लस 0.01, इसकी हम्म, 0.02, कितना आएगा है ना? नहीं, कितना आएगा इसका, 0.02 जो भी आएगा इसका, अपन देखें इसको जोड़ेंगे हम्म, तो 0.03। गॉट इट? जी हम्म, यस। इट क्लियर? तो कहीं भी जीरो आ रहा है क्या अब मेरे पास यहाँ पे मिड वैल्यूज में? नहीं आ रहा है। -1 नो। नहीं आ रहा ना? नहीं। तो यहाँ बिल्कुल। पर मैंने जीरो को ही, मुझे प्रॉब्लम किससे थी, जीरो से थी। माइनस नंबर से भी नहीं है, पॉजिटिव नंबर से भी नहीं है, मुझे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से कोई हम्म, प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी जीरो, क्योंकि जीरो सूडो है, नंबर थोड़ी सूडो है। बिल्कुल। -0.2 तो नंबर है, वो रियल है, पर जीरो जो है हम्म ना वही सूडो है बस। व्हाट माई पॉइंट? यस। यस। मुझे प्रॉब्लम थी जीरो से, मैंने जीरो को ही हटा दिया। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हम्म व्हाट इट, क्योंकि जीरो नहीं है मेरे पास। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? यस सर। यस। सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम था उनका कि उन्होंने ये नहीं देखा, डेटा एनालिस्ट ने, कि यार ये जीरो सूडो है या रियल है। ठीक है, रियल है। और ना ये चीजें सिखाई जाती हैं कहीं भी डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में। हम्म, ये बहुत माइनर चीजें होती हैं जो नहीं सिखाई जाती हैं। बहुत सी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं सिखाई जाती हैं कि भाई क्या चीज है। ऑर्डरेबल, ये जो क्लासिफिकेशन भी है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है कि कैटेगरिकल डेटा नॉमिनल और ऑर्डरेबल होता है। ठीक है। वो लोग उसको ऑर्डिनल डेटा ही बोलते हैं। ऑर्डिनल कब बनता है, जब आप उसके ऑर्डर ले लेते हो, ऑर्डर न्यूमरिक यूज करते हो, तब वो ऑर्डिनल में कन्वर्ट हो, नहीं तो ऑर्डरेबल है, उसके हम ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है ना? तो इंटरवल और रेशियो में अब डिफरेंस क्या आता है, इंटरवल में दोनों जीरो यूज कर सकते हैं हम। इंटरवल में हम दोनों जीरो यूज कर सकते हैं, सूडो और रियल। ठीक है, सूडो एंड रियल। पर रेशियो में हमेशा रियल जीरो यूज होता है। तो हमें इतने भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको मान लें स्केल डेटा। व्हाट इट, इज इट क्लियर? एज यस सर। स्केल डेटा है, इनकम स्केल डेटा है। ठीक है, टेम्परेचर हुआ, स्पीड हुआ, ये सब स्केल डेटा। अब हम बात करते हैं स्केल डेटा को, फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब बताएंगे कोई कि डिस्क्रीट डेटा किसको बोलेंगे हम? यस, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है भाई? डिस्क्रीट नंबर तो बहुत पढ़े हैं बचपन में, पांचवी सातवीं में। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, ये अपन कल देखेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, और कल ही अपन देख पाएंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस और आगे जी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। कल भी, कल के एजेंडा में है हमारे, कल के एजेंडा में हमारा क्या बोलते हैं आपका ये भी है, एक सेकेंड में, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, है ना? तो ये चीजें हम यहीं वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, मोहित, सिरजा, राकेश, प्रीति? यस सर मोहित। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ पूछें सॉरी। पूछें धनंजय। मैं एक क्वेश्चन था अभी, जैसे आप नीचे बता रहे थे कि बोले एज जो है मतलब अपन उसको सूडो नहीं ले सकते। हाँ, एज जीरो है यानी हाँ जीरो एज यानी मतलब सर मतलब कि वो वो है तो ही नहीं, कोई एज ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है बच्चा। एग्जिस्टेंस में ही नहीं है ना। हाँ, तो मतलब जो ये जीरो उन लोगों के लिए भी हो सकता है ना, जो मतलब जैसे कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है तो वो भी जीरो काउंट हो सकता है। नहीं वो नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो उसकी ऑलरेडी एज वो तो एज लेके। को जी के गया है ना यहाँ से, है ना? करेक्ट करेक्ट हम तो करेक्ट करेक्ट। प्रेजेंट डेटा में अभी जो करंट में एज क्या है, जीवित लोगों की एज क्या है, तो वहाँ ठीक जीरो ठीक। तो खैर आएगा ही नहीं जीवित लोगों की एज में, जीरो के बाद ही आएगा। सही ठीक। सही। बिल्कुल। Got हाँ it। भाई, और किसी को कोई क्वेश्चन? Right, sir, totally clear. टोटली क्लियर। प्रीति जी?
प्रीति जी भी ज्वाइन करी हैं, ओके नाइस। हाँ, हम्म। राकेश, क्या नाम था राकेश, जी का नाम मैं भूल रहा हूँ से, आई थिंक दैट द नेम ऑफ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चंस तो नहीं है ना आज के? ठीक है, नहीं नो सर, नो सर। चलिए। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से आज छोड़ा है उसी के आगे, और ये डेटा क्लासिफिकेशन वाली भी सीट में जो है वो आपको शेयर कर दूंगा, और आगे की कल की भी मैं शेयर कर दूंगा। कल मॉर्निंग में ये ठीक शेयर है, कर पाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक और हो बाकी तो गया, ये मैंने शेयर कर दिया, वो सीट तो डाउनलोड कर ही गया है और उसको पढ़िएगा आप लोग, है ना। जी। ठीक हो गया सर। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर योर टाइम, थैंक थैंक यू यू ऑल। सर। थैंक यू, गुड थैंक यू नाइट। एवरीवन। Thank you गुड everyone. Bye नाइट। bye.